باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چلیے، بات چل رہی تھی مثال اور اجوف کے بارے میں، خصوصی قاعدوں کے بارے میں، اور ہم نے اجوف کے خصوصی دو قاعدے پڑھے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا اجوف کا خصوصی؟ جی، اجوف کا پہلا خصوصی قاعدہ کیا تھا؟ اگر اجوف کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہو، اگر اجوف کا مضارع سبھی کا الچا فاطمہ، آپ بول نہیں رہے، آپ لوگ بول تو سکتے ہیں، میری بات ویسے نہیں بول سکتے تو میں بول رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ جو ورڈ میں نے بولے اس کو دوہرا تو سکتے ہیں۔ اگر اجوف کا مضارع سارے آپ لوگ بالکل جی، اگر اجوف کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہو تو اس کے ماضی کے چھٹے صیغے سے آخر سے لے کر آخر تک فعل واؤل پہ سے ضمہ آ مضموم جائے ہوگا، گا۔ ضمہ اور ہوگا۔ اگر اجوف کا مضارع یفعل یا یفعل کے وزن پہ ہو تو واؤل چھٹے پہ صیغے سے لے کے کسرہ آ آخر جائے تک گا، واؤل چھٹے سے پھر لے کے آخر تک ماضی کے مکسور صیغوں میں۔ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلا خصوصی قاعدہ جی اجوف کا یہ تھا۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ اجوف چاہے مجرد ہو چاہے مزید کا، اس کے مصدر میں واو سے پہلے کسرہ ہو اور واو کے بعد الف ہو تو وہ الف واو یا سے بدل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ماضی میں اس کا اعلان اعلان ہوا ہو۔ ہوا ہو۔ جی، اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں مگر اس کے ماضی میں اعلان نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے آپ کو مثال قائم کی تھی اجتواز یا لواز، ٹھیک تھا، اجتواز، اس میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے واو سے پہلے کسرہ بھی، واو کے بعد الف بھی ہے، مصدر بھی، سب شرطیں ہیں، لیکن نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کے ماضی میں اعلان نہیں ہوا۔ یہ دو قاعدے پڑے تھے۔ پھر ہم نے نقطوں میں ایک بات بیان کی، پہلی بات یہ بیان کی کہ اجوف کا اگر ہم قاعدہ جو ہم نے یاد کیا، عمومی قاعدہ اور 10 قاعدے تھے وہ یاد کیا، خصوصی قاعدے کو دونوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ ماضی میں 8واں قاعدہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ ماضی میں شروع کے 5 صیغوں میں 8واں قاعدہ جاری ہوگا۔ واو متحرک ما قبل فتح ہے تو الف سے بدل جائے گا، پہلے سے لے کے 5ویں تک قالتا، پہلے سے لے کے 5ویں تک 8واں قاعدہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد سے 8واں بھی جاری ہوگا پلس 10واں بھی جاری ہوگا۔ کیوں؟ قالتا کے بعد اگر ہم گردان کرتے ہیں قالا قالا قالو قالت قالتا، قال نہ ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ لہذا 8واں قاعدہ تو یہ جاری ہوا، کیا؟ واو پر الف سے بدلا، التقاء ساکنین تھا تو الف گر گیا، ٹھیک ہے، پلس دو عمومی قاعدے 8واں اور 10واں، چھٹے سے شروع کے 5 صیغوں میں صرف 8واں قاعدہ، چھٹے سے لے کے آخر تک 8واں پلس 10واں قاعدہ جاری ہوگا، اور چھٹے سے لے کے آخر تک ایک خصوصی قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ یفعل کے وزن پہ ہوگا تو ضمہ آ جائے گا، اور اگر یفعل یا یفعل کے وزن پہ ہوتا تو کسرہ آ جائے گا، فکنا جیسے فکنا بکنا، یہی پڑھا تھا کل ہم نے۔ مائک بند کر لیجیے، کس کا یہ دوبارہ کاٹ کے کنیکٹ کر لیجیے، کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ سکینہ آپ ٹھیک ہیں؟ سکینہ، آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کسی گروپ سے لیفٹ ہوئی ہیں، کون سے؟ آغا ہم اس میں جوائن ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، آغا محمد میاں پڑھا رہے تھے وہاں پہ۔ نہیں، کسی گروپ میں نے آپ کو کل دیکھا، واٹس ایپ کے گروپ سے آپ لیفٹ ہوئی ہیں۔ اچھا آغا ہمیں یہ نہیں پتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے نمبر عمومی اور خصوصی قاعدے توجہ میں رکھتے ہوئے جو چینجنگ اجوف میں آتی ہے وہ یہ بات آتی ہے، کیا؟ پہلا 5 صیغوں میں یہ ہم نے پڑھ لیا، بے در تمام صیغہ، یہ ماضی کے پڑھ لیا۔ ماضی میں کیا کیا ہوگا اجوف میں؟ شروع کے 5 میں صرف 8واں قاعدہ، اس کے بعد سے 8واں 10واں اور خصوصی قاعدہ ایک۔ بے در تمام صیغہ مضارع معلوم، ماضی معلوم، مضارع کی بات ہے، مضارع معلوم کا تمام صیغوں میں پہلا قاعدہ، ٹھیک ہے، جاری ہوگا۔ مضارع کے 14 کے 14 صیغوں میں قاعدہ اول یاد ہے، پہلا قاعدہ واو اور یا متحرک ہوں، کل میں کائن فعل ہوں، اور ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہوں تو واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، تو 14 کے 14 میں یہ والا پہلا قاعدہ تو جاری ہوگا،
प्लस छठे और 12वें सीगे में 10वां भी जारी होगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको। काला था ना, यकबुलु हुआ ना, मुजारे मालूम जी बोलो वाव मुतारिक माक़बल हर्फ सही और साकिन है, नुन फेल दिया हो जाएगा यकूलो। गर्दान कीजिए, यकूलो, यकूलाने, यकूलूना, सबके सब में वाला कायदा जारी होगा। वरना अगर आप कैसे करेंगे गर्दान, बगैर लाल जारी करे कायद गर्दान करेंगे तो कैसे होगी? यकवुलो, यकवुलाने, यकवुलूना, ऐसी होगी ना, यकवुलो, यकवुलाने, यकवुलूना, सारे के सारे में वाव पे जम्मा होगा तो माक़बल को दे देंगे यकूलो, यकूलाने, यकूलूना, पूरे के पूरे सीगों में 14 की 14 में। लेकिन यकूलो, यकूलाने, यकूलूना, तकूलो, तकूलाने, यकूलना, छठा सीगा क्या होगा? यकुलना यकूलना। ठीक है, दो साकिन एक जगह है, क्या होगा? वाव हस्फ हो जाएगा, यकुलना। गुलाम अली इसका वजन तोल के बताएंगे यकुलना का। जी बताओ, इतने दिन तक पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते अब भी अगर ऐसे नहीं बनाओगे, सोचना पड़ेगा, तो इतना देर तक इतने दिन तक समझा समझा के पढ़ाने का कवायदे वजन तोलने के जो 6 कायदे थे उनका फिर फायदा क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है आपने समझा, सिर्फ आपने कॉपी पे मिल बैठ के मुबाहिसे में सॉल्व नहीं किया। आसान किसने कहा यकुलना? जिसने कहा यकुलना सही कहा। फुलना क्यों? क्योंकि वाव ऐनुल फेल तो हस्फ हो गया ना। हमें देखना ही है कि हर्फ असली हस्फ हुआ है तो कौन सा हुआ है? ऐनुल फेल हुआ है, हस्फ कर दीजिए। या को ऐसे उतार दीजिए, काफ तो फाउस फेल था ना, अल्लाह लामुल फेल था, नून ज़मीर है। यकुलना, यकुलना बरवज़्ने यकुलना, हस्फ कौन सा हुआ है? वज़न में से वही हस्फ कर दीजिए। अब इतना आसान हो गया है इतने दिन में। तो छठे और छठा 12वां सीगा क्या बनता है? तकूलना। तकूलना है जी, तकूलना जी, तकूलना। यहाँ भी वही कायदा 10वां। 8वां तो है ही, 8वां तो है ही, 10वां भी। तो यानी मुजारे मालूम, अजवफ का मुजारे मालूम में 2 कायदे जारी होंगे। पहला कायदा सब में और 10वां कायदा छठे और 12वें, यानी 10वें, छठे और 12वें में मतलब 10वां जारी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहला जारी नहीं होगा, पहला भी जारी होगा, 10वां भी जारी होगा। ठीक है, ये हमने अजवफ के बारे में जाना। आ गया ये नोट कौन आया है? सकीना, मासूमा मैम, खानुमे, मासूमे, समानी। लेकिए नंबर 3 जीम क्या कह रहे हैं? बेजहते इजराए हमीन कवाइद, ये जो अभी ऊपर इशारा किया, इन्हीं कवाइद को जारी करने की वजह से। कौन सा लेके? कायदा नंबर 1 और 10 को जारी करने की वजह से यकूलो की गर्दान ऐसे होगी। क्या होगी? अम्र भी ऐसा ही होगा, अम्र यकूलो ऐसा होगा। यकूलो तो पढ़ लिया, अम्र ऐसे होगा। कैसे होगा देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। आपको मालूम ही अम्र गायब बनाने का और अम्र बनाने का तरीका क्या है? क्योंकि जी यकूलो आपको मालूम है कि अम्र 2 तरह का होता है, अम्र बिलाम, अम्र बे सीगा। अम्र बिलाम जो होता है वो 8 सीगों का होता है, 6 गायब के और 2 मुतकल्लिम के, 6 हाजिर के। उसको उसका तरीका अलग है। क्या है तरीका? ये तो बहुत आसान है। लाम अम्र मकसूर ले आएंगे और साकिनैन हुआ। 8वां तो जारी हुआ भाई, पहला तो जारी हुआ भाई था ना, वाव की हरकत माक़बल को दी थी। अब ये लाम की वजह से आखिर को जज्म दिया और इस सीगे में अलामत जज्म सुकून है तो साकिन 2 हो गए, वाव गिर गया। जी अब वाव खास वाव क्या बना? ले यकुल, ले यकुल, ले यकुल। गर्दान कीजिए, ले यकुल, ले यकुल, ले यकुल। अब ये बताइए, यहाँ पे वाव गिर गई, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ वापस क्यों आ गई सभी का? उनका फातिमा, क्योंकि लाम पे यहाँ पे साकिन जी उन 5 सीगों में इल्तिक़ाए साकिनैन होगा जहाँ पे अलामत जज़्म साकिन होती है। 1 4 7 जी 4 7 13 14 15। अरे लग रहा है उनका फातिमा ने आज नाश्ता ज्यादा कर लिया है। नहीं आ रहा 14 15 अभी तक यही नहीं है। अच्छा, तो फिर हो सकता है भूख
जो है वो दिमाग में ज्यादा चढ़ लगे। गई। तो 5 चीजों में 10वां कायदा जारी होगा। वो क्यों? क्योंकि अम्र पे लाम जो है वो 5 चीजों भी ना कहिए बल्कि हाँ 5 चीजें, क्योंकि अलामत जज्म या 6 चीजों तो मबनी होते हैं ना, तो सुकून जो है ये तभी अल्तक़ा साकिनैन होगा कि जहां पर आखिर में साकिन हो, जभी तो यहाँ साकिन है ही नहीं। जी ठीक है, ले यकुल, ले यकुला, ले जी यहाँ भी इल्तिक़ा साकिनैन नहीं है, इसलिए वाव हस्फ में नहीं हुआ है। जी। ठीक है, क्या कायदे जारी हुए? पहला और 10वां। यहाँ पर पहला और 10वां, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहला, यहाँ सिर्फ पहला। और 10 फिर छठे सीगे में भी 10वां पहला। लेकिन अम्र हाजिर क्या बनेगा? मुजारे क्या था? तक़ूलो, तक़ूलो। पहला कायदा तो जारी हो गया था ना, वाव क्या था? नाम को दे दी थी तक़ूलो। अम्र हाजिर बनाने का तरीका आपको मालूम ही है कि अलामत के मुजारे के आने के बाद अगर बाद वाला हर्फ पे हरकत है तो हमने लगाने की जरूरत नहीं। अभी पहला कायदा जारी हुआ था, अब ये 2 साथ एक जगह जमा हो गए तो वाव हस्फ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरा सीगा क्या होगा? ऊला। पहला तो जारी हुआ है इसमें, लेकिन दूसरा 10वां जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इल्तिक़ा साकिनैन ही नहीं जो वाव गिरी। ऊला, ऊली, ऊला, कुलना, कुल्ला में तो उसमें भी कुलना में भी पहला और 10वां जारी हुआ है। तो ये हो गई मुजारे मालूम और अम्र की गर्दान कि पहला और 10वां कायदा जारी हुआ। अजवफ की है ये। ठीक है, ये आपको खाली कायदे याद करा के नहीं छोड़ा, आपको कायदे याद करा के आपको सारे कायदों को जारी करके एक उसमें दिखाया भी आपको। ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। सही। और आपको मालूम ही है कि इसका जो माजी मजूल है अजवफ का कवाला से, क्या है ये? मजूल कोवेला, तीला है। तीला इसमें क्या था? कोवेला था ना, कोवेला भाई कावाला था, कावाला माजी मालूम। इसमें तो कायदा जारी हुआ वाव साथ मुतारिक माकल फता अलिफ से बदल दिया था। लेकिन मजूल बनाने के लिए क्या करते हैं? मजूल बनाने के लिए मा कबले आखिर को कसरा देते हैं और उससे पहले जितने मुतारिक हर्फ हैं उनको ज़म्मा देते हैं, जो कि यहाँ पे एक ही था। कोवेला था ना, मजूल कोवेला बनाना। जब कोवेला मजूल बना तो ये कीला कैसे हुआ? बताइए, कौन बताइए? क्योंकि वाव मुतहरिक उसके दूसरा कायदा जारी हुआ। कौन सा? जी, वाव मजमूम या मकसूर। यहाँ पे मकसूर है वाव, या यहाँ पे जम्मा हो या कसरा हो। यहाँ कसरा है वाव पे। माँ का हर्फ सही और मुतहर्रिक हो तो माँ का डिलीट करके सल्ब करके इसकी हरकत उसे दे देते हैं। क्या हुआ? और दूसरा कायदा जारी हो गया। और चौथा जारी हो गया। चौथा याद है? वाव साकिन माँ का कसरा हो तो यहाँ से बदल जाता है। जी कीला कैसे हुआ? जी। तो इसका मतलब कोवेला से कोवेला कौन सा जारी हुआ? दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फिर कौन सा जारी हुआ? चौथा जारी हुआ, कीला। ठीक है जी। बस ये मत देखिएगा कि एक ही कायदा जारी करके छूट जाए। हो सकता है बात जगह 2 जारी हो रहे हैं। नहीं, किसने कहा कि चलिए बात आई गई है तो बताइए अली असगर, इसका वजन क्या है कीला का? कीला पहली बात तो मालूम नहीं है, मजहूल है। कोवेला कीला बवज़ने फ़ुइला। याद है नहीं कि अगर किसी सुकूनी कायदे की वजह से कुछ तब्दीली आई है, जैसे ये था कावलास में क्या था? कालास में क्या था? कावला था ना, तो इस पर मत कहिएगा, इस पर फ़आला ही कहेंगे। तो असल की
की रियायत की जाएगी। याद है नहीं? ना याद हो तो फिर वापस पलट के जाना उन 6 कायदों में दोहराना कि अगर हस्फ वस्फ हुआ हो या जगह अदल बदल हुई हो तब करते हैं बदलाव, लेकिन अगर ऐसे कोई तब्दीली हुई हो या ऐसा हुआ हो तब असल वजन की रियायत की जाती है। तो फ़ुक़ीला फ़ुइला के वजन पे है। समझ में आया? जी। या पलट के दिखाऊं आपको फिर से ये बात पीछे ताकि याद रहे। अरे पता है, पता होता तो क़ीला का वजन भी गलत बोलते। जी कोयला के वजन पर जी फ़ुइला के वजन पे। ठीक है जी अगर मम्मी एक मिनट, सफ़ा 96 देखें। ये देखिए नंबर 5 दिख रहा है? नहीं, ये कहाँ पे है? नंबर 3 वाला कायदा देखिए आप। नंबर 3 दिख रहा है आपको? जी। वजन तोलने के कवायद में से तीसरा कायदा यह है कि पहले में तो यह है कि हुरूफ असली को तरतीब से उसके सामने रख देंगे, हुरूफ असली के सामने। अगर दूसरे कायद फिर क्या करना है, अगर हरफ जायद है तो उसको ऐसे ही उतार देंगे और अगर तकरार है तशदीद दे देंगे। नंबर 3 पे हरकत देनी है ना, तो ये कह रहा है हुरूफ वज़न लाम की जो हरकत है उसी हर्फ की जैसी होगी जो उसके सामने है। मसलन फ़े लाम की हरकत वही होगी जो ज़राबा में ज़्वाद पे है, वही फे पे होगी जो उस पे ऐसे। बिनाबरीन इस बिना पर क्योंकि वही हरकत होगी आलिमा बरवज़न फ़ाइला है, क्योंकि ऐन पे ज़बर है फाउल फेल पे, तो यहाँ फाउल फेल पे ज़बर है मतलब फतह। यहाँ ऐन लाम है, इस पे कसरा है तो यहाँ पे कसरा है। ये मीम लामुल फेल है, उस पे फतह है तो इस पे फतह है। और अलीम फ़ाइल, उलूम फ़ुऊल। लेकिन मगर ये के हरकत जो है बर असर क़वाइद इलाल वगैरह, यही था ना, अगर हरकत एलान वगैरह के कायदे की वजह से के खाहा दामद जो के अनकरीब आएंगे, बाद में आगे नहीं आएंगे उन कवायद एलान की वजह से अगर हरकत तगीर कर दे बादशाह, अगर हरकत बदल गई है तो ऐसी सूरत में हरकत असली रियायत की जाएगी। अब अगर ये काला कवायद एलाल की वजह से हरकत बदली है, कवाला से काला हुआ है, तो इसका वजन असल रियायत की जाएगी, फ़ाअला ही कहा जाएगा कि काला बरवज़न ऐसे ही क़ीला है क्योंकि ये कवायद एलाल की वजह से हरकत बदली है, इसलिए क़ोवेला असल की। जैसे कहेंगे काला बरवज़ने फ़ाअला, क्योंकि काला था वाव एलाल की वजह से इसकी हरकत बदली है, लिहाजा हम असली की रियायत करेंगे। असली क्या था? कावाला। ऐसे क़ीला का असल क्या था? क़ोवेला। तो असल की रियायत करेंगे। क्यों? इसलिए कि असल में कावाला था। और हम कहेंगे यमुद्दो का हम ये नहीं कि यफ़अलु के वजन पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ इदगाम की वजह से हरकत बदली है। ठीक है, क्योंकि असल में क्या था? यम दो यफ़अलु। तो अगर यही कह रहे हैं कि जब हम वजन तोलने बैठे किसी कलमे का तो फ़ेल लाम को तरतीब से उसके सामने रख के जो हरकत जिस हर्फ पे है असली वाले पे वो दे देंगे, लेकिन अगर कवायद इलाल हैं या इदगाम है या इस किसी और वजह से अगर हरकत तब्दील हुई है तो इस तब्दीली की रियायत नहीं करेंगे बल्कि असली की रियायत करेंगे। जैसे काला असमें कवाला था, या मुद्दो असमें यफ़अलु था। समझ गए हम कहाँ पढ़ रहे? ये कहा दामद आएगा, आ गया नहीं? कहाँ आया? सफ़ा नंबर आप बताइए, पलट के फिर वहीं पहुंचे हम। 141 था शायद। सकीना समझी? जी आगा। क़ीला कैसे हुआ समझी? आगा थोड़ा समझ में आया है। चलिए, इन्होंने ये कहा था कि वजन तोलने के जो 6 कायदे बयान किए थे उसमें ये था कि जब आप किसी कलमे का वजन तोल रहे हैं, लिखिए मैं लिख के समझाऊं तो और शायद, हालांकि समझाने वाली बात नहीं की आपको। जब इन्होंने ये कहा मसलन आप वजन तोल रहे हैं इसका नौसेरा का, तो क्या है कायदे की रियायत क्या करनी है? हुरूफ असली के मुकाबले पे फ़ेल लाम को रख देने, पहला नंबर रख देंगे। ठीक है। अब हरकत क्या देनी? जो इस पे है वो जो यहाँ पहले असली हर्फ पे है, यहाँ पहले असली हर्फ पे। दूसरे असली हर्फ पे क्या है? ज़ेर। तीसरे असली हर्फ पे क्या है?
ठीक वजन तुल गया। लवा ठीक है, लेकिन अगर हरकत एलाल के कायदे या किसी और वजह से तब्दील हो गई है, जैसे काला काला, इसका वजन अगर आप तोलने बैठे तो आप ये नहीं कहेंगे काला बर वजन फ़अला कर दें इनको साकिन, नहीं, ये एला इसको असली की रियायत की जाएगी। असली क्या था काला का? काला। काला असली की रियायत की जाएगी, कहेंगे फ़अला। ठीक है, या जैसे यमुद्दो, जी यमुद्दो की असली क्या थी? यम दो दो असली की रियायत की दो जाएगी, आप कहेंगे यमुद्दो बवज़्न या यफ़अलु। फॉलो अब ये नहीं कहेंगे यमुद्दो का मतलब है मीम दाल दाल, यानी फे एन लाम, आप कभी करें दुल्हन क्या क्या करने लगे आप, वो नहीं, असल की रियायत की जाएगी क्योंकि यहाँ किसी वजह से वो बदल गई है। जी ठीक है सकीना? जी आगा। तो कीला समझ में आया क्यों फ़ुएला के वजन पे है? क्योंकि कीला में कायदे एलाल की वजह से हरकत तब्दील हुई है, लिहाजा असल की रियायत की जाएगी। और आप जानते हैं कीला की असल क्या थी? ओवेला फ़ुएला। तो कीला बवज़्न फ़ुएला है, कीला फ़ुएला बवज़्न फ़ुएला कीला का वजन क्या है? फ़ुएला। ठीक है, आइए आगे आइए। तो हमने ये आपको करके दिखा दिया। नंबर जी, बेजहते इजराए हमीन कवाइद, यही कायदों के जारी होने की वजह से। कौन कौन से कवाइद? यही कायदे कौन कौन से? 1 और 10, इसी के जारी होने की वजह से अम्र यकूलो को अम्र इस तरीके से सर्फ मिकुनीम ऐसे गर्दान करेंगे। ले यकुल पहला जारी हुआ, 10वां जारी हुआ। ले यकूला, ले यकूलू, ले तकुल, ले तकुला, ले यकुलना, कुल कूला कूलू कूली कूला कुलना, ले अकुल ने नकुल। यबीओ का अम्र ऐसे होगा क्योंकि तो अजवफ़ वावी की मिसाल थी, अजवफ़ याई की। ले यबीर होना चाहिए था, पहले यब ये ओ था ना, यब ये ओ, पहला कायदा जारी हुआ यबीओ, फिर लाम आया ले यबी, आखिर को जज्म दिया तो ले यबी इल्तक़ा साकिन हुआ, या गिर गई ले यबीर, फिर यहाँ पलट आई ले यबी आ, क्योंकि या क्यों पलट आई? क्योंकि यहाँ इल्तक़ा साकिन है ही नहीं। ले यबी अम्र हाजिर होगा, बी होना चाहिए था, या गिर गए इल्तक़ा साकिन की वजह से, बे बी आ बी वो नीज। और ये भी याद रखिए असले कीला जो कि काला का मजहूल है, कीला जो है वो काला का मजहूल है, इसकी असल कोवेला थी कि बेजहते इजराए कवायदे 2 और 4, कायदा नंबर 2 और 4 जारी होने की वजह से ऐसी सूरत में आ गया है ये। वो असले बिया, बा का मजहूल क्या है? बिया की असल क्या थी? वो ये के कायदा नंबर 2 जारी होने की वजह से ऐसा हो गया है। वो ये या मकसूर है, माक़बल हरकत सही और मुतहर्रिक है, माक़बल की हरकत खत्म करके या की हरकत उसे दे दी, बिया हो गया। ठीक है, ये तमरीनें हैं। कल इंशाअल्लाह तमरीनों का दिन है। कल मैं आपकी रह गई मिसाल की रह गई, अजवफ़ नहीं, मिसाल अजवफ़ और भी कुछ रह गई। हाँ नहीं कह रहे हो? हाँ हो गया। मिसाल ये जो हैं हम क्या करेंगे कल, आप मतलब आप कल मैं कराऊंगा आपको, आप करके लाइएगा ताकि जो कमी हो आप यहाँ दे दीजिएगा। क्या है? नंबर 1 मोतल तारीफ नमूद, मोतल की तारीफ कीजिए। आप सब जानते हैं मोतल वो कलमा है जिसके हरफ असली की जगह वाव या अलिफ हरफ इल्ला, तो उसकी कितनी किस्में नाम गिनाइए। कहिए आप मिसाल, अजवफ़ की जगह तो मोतल उल्फा या मिसाल भी कहते हैं, अजवफ़ नाक़िस, लफीफ, लफीफ भी 2 तरह का, लफीफ है मक़रूक़। मसादिर ज़ीर दरअसल 6 बुनियाद, ये जो ये हैं ये मसदर हैं, मसादिर ज़ीर नीचे के जो मसदर हैं ये असल में क्या थे? हेबातुन असल में क्या था? हेबातुन वाव था ना, वेहबुन था, वेह या वाह, वहब। हाँ, साअतुन असल में क्या था? वस्उन, वस्उन। जिदतुन क्या था? विजदुन मसलन, मक़तुन। ठीक है, मुज़ारे मालूम याइदो का और यरेसो का मुज़ारे मालूम की गर्दान कीजिए, यानी याइदो याइदान याइदूना, यरेसो यरेसान यरेसूना, और यजिदो और यसिलो का अम्र मालूम, ले यजिद ले यजिदा, ऐसे ले यसिल ले यसिला, पूरी गर्दान। और मुज़ारे मजहूल यजिद का करना है, ले यूजद, क्योंकि वाव का असल नहीं होगी,
لیوجد، لیوجدا، لیوصل، اور امر معلوم یقل اور یہب کو کرنا ہے، لیکل، لیکلا، لیہب، لیہب، اور یضع اور یطع کا امر مجہول، لیوضع، 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 لیوطع، لیوطع، ایسے. قواعد خصوصی و عمومی مثال، مثال یعنی مثال یعنی معطل الفاء کے خصوصی اور عمومی قاعدے دو مثالوں کے ساتھ ذکر کیجیے. یدعو، یردو، یذرو، یقفو کی امر معلوم کی گردان کریے. بہت آسان بات ہے. اور یہ اجوف ہے. اجوف کی تمرینیں کہاں ہیں؟ یہ رہی. در قدام، در کلمات زیر، نیچے کے کلمات میں قدام قاعدے از قواعد علال جاری می شود. قواعد علال میں سے کون کون سے قاعدے جاری ہوں گے؟ یزینو میں پہلا قاعدہ یزینو، یربعو میں بھی پہلا قاعدہ یروعو، لویما میں لیما بنے گا، لوہما پہلے دوسرا پھر چوتھا ہے قویما بہی، تو یہی قیمہ بہی ہو جائے گا مثلا. سیارہ میں کون سا جاری ہوگا؟ آٹھواں یا متحرک ما قبل فتح سارا. یجیئو میں یجیئو ہو جائے گا. آپ بتائیے گا. حیلتن میں حیلتن ہو جائے گا. جوران میں جیران. عید میں سے عید ہو جائے گا. القبل سے قیل ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کو کر کے دیکھنا ہے. نمبر 2 معلوم و مجہول ماضی. قام یقومو کا ماضی معلوم اور ماضی مجہول، اور خافا یخافو، ٹھیک ہے، ان کا وسارا یسیرو اور ہابا یہابو کا جو وفیائی ہے، ان کی گردان کرنی ہے. معلوم مضارع، یہ تمرین سابق، اوپر والی جو تمرین ہے اس میں جو مضارع معلوم ہے، ماضی معلوم کی گردان کی نا بھی قام یقوم ہو تو اس کا مضارع کرنا ہے، بیان کیجئے. اور صیغہ نمبر 1 6 10 یقولوں میں کون سے قاعدہ یا کون سے قاعدے جاری ہوں گے یہ بتائیے گا. پہلے چھٹے اور 10ویں صیغے میں یقولوں کا پہلا صیغہ، چھٹا صیغہ اور 10ویں صیغے میں کون کون سے قاعدے جاری ہوئے ہیں. ماضی کے 5 شروع کے 5 صیغے، ماضی مجہول کے شروع کے 5 صیغے قالا سے، قالا سے ماضی مجہول کے شروع کے 5 صیغے اور باء کے کون سے قواعد جاری ہوئے ہیں بتائیے، اور باقی صیغوں میں کون سے جاری ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے. نمبر 5 امر معلوم اور امر مجہول افعال تمرین دوم را صرف کنی. تمرین نمبر 2 کے جو فعل ہیں ان کا امر معلوم اور امر مجہول گردان کرنا ہے. کون سے تمرین نمبر 2 کے فعل؟ قام یقوم، خافا یخافو، سارا یسیرو اور ہابا یہابو. نمبر 6 میدانی در اجوف ہمیشہ. آپ جانتے ہیں اجوف میں ہمیشہ صیغہ نمبر 1 4 7 13 14 6 اور 12 امر کا عین الفعل حذف ہو جاتا ہے. علت کیا ہے اس بات کی؟ سبب کیا ہے؟ یہ آپ کو بیان کرنا. بہت سخت حذف، بہت سخت علت اور سبب ہے. نہیں بہت آسان سا ہے بھائی، سیدھا سیدھا. کیوں حذف ہو جاتا ہے عین الفعل؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے. مجہول ماضی و مضارع و امر، مضارع ماضی اور امر کا مجہول خاف امینو ان سے گردان کرنی. نمبر 8 با توجہ بے قواعد وزن. 6 وزن جو قاعدے وزن تولنے کا آپ نے پڑھ چکے ہیں مقدمے میں جو گزرے ہیں ان کو توجہ میں رکھتے ہوئے وزن صیغہ ہے یہ ماضی معلوم. ماضی معلوم کے جو صیغے ہیں خوف سے، خافا خافا خافو، ان کا وزن، اور مضارع مجہول البے سے بیع بیع بیعو ان کا وزن، اور امر معلوم جو قول کا ہے اللہ یقول یقولا ان کا وزن بتائیے کیا ہیں. اجوب کے خصوصی قاعدے بیان کیجئے، وہی 2 ہیں، اور لیسا کی گردان کیجئے. دہ کلمہ معطل از قرآن مجید بیاورید. قرآن مجید سے 10 معطل کلمات نکال کے لائیے اور ان کا علال بیان کیجئے کہ اس میں کون سا قاعدہ علال کا جاری ہوا ہے. مثلا آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایک آیت نکال کے اس میں قو آیا ہے، کیا تھا؟ وقایا یوقیو تھا. یہ یوقیو سے کب قیا قو بن گیا؟ وہ آپ مثلا اس طریقے سے آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے اس میں جو ایسا ہو گیا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا قیاس میں کیا تھا؟ وقایا یوقیو تھا. یوقیو یفعلو مثال واوی بتایا تھا. مثال واوی فعلوں کے وزن پہ ہو تو واو مضارع سے گر جاتی ہے، تو یقیو بچا.
यो, फिर या यो। कायदा नंबर उमूमी तीसरा याद है, वाव कलमे के आखिर में है, जम्मा गिर गया, यकी, यकी है, यकी बचा। अब यकी में आप अम्र बनाइए, अम्र हाजिर, या गिरा दी, तकी था ना, हाजिर का सिफत ते गिरा दी, बचा की, और आपको मालूम है खाली ते गिराने के बाद आखिर को वो भी तो करना है, तो अगर हर पे इल्लत नहीं है तो खुद हर पे इल्लत गिर जाता है, या भी गिर गई तो क्या बचा के, काफिर के, बरवत ने ए, क्योंकि ऐनुल फेल है। अब इसकी गर्दान पर अम्र हाजिर के, क़याक़ू, अब आपको ऐसे बताना है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।